Hello students, my name is Shama Parveen and I am your SST teacher. I will teach you SST. Let's start chapter 1. The name of chapter 1 is Early Humans. In these chapters, we know about the early humans, how do they lived, what did they eat, where did they go for the food. Okay, let's start. There are the some figures, figure A, B and C. What are the images shown? Figure A. Yes, student, tell me. Yes, this is a tool. See the figure number B. Yes. Yes, right, understand. There are some human beings are riding on a horse. See the figure number C. What is this? Guess it. Yes, right. This is a stone pot. Yes. Next, we will study about early humans. Okay? Let's find out how do we know about the life of early humans. Okay? Let's find out how did they live. The Bhimbetka caves. The Bhimbetka caves, which are the shelter of early humans. You know कि early humans lived in a caves, and Bhimbetka caves is a rock shelter of early humans. It is a near about 30,000 years old. Okay, class? And in these caves have a painting, and these paintings show that the early human lived here. And who told us? The archaeologists told us that about these caves and the paintings and how did they use these paints. In some caves, okay students, I want to tell you about the Bhimbetka caves, that the Bhimbetka caves are found in MP, means Madhya Pradesh, and it is in a Raipur district. And our archaeologist Vishnu sir are find it in 1958. Okay, class? Okay. And these archaeologists told us that, okay class, let's start from the these archaeologists tell us that how did they live early humans, and they adapted to the environment, and how did they eat and what did they eat. Archaeologists also tell us who studies the people who lived 100,000 years ago with the help of things found the caves or deep under the ground. Means कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो हमको ये बताते थे कि हमारे जो आदि मानव, अर्ली ह्यूमंस की मतलब होता है आदि मानव, यानी हमारी फोर फादर, ठीक है, वो हज़ारों सैकड़ों साल पहले रहते थे और वो इन गुफाओं के अंदर गहरे ज़मीन खड्डों में वो रहते थे और वही हमको ये सारी जानकारी देने में मदद करते थे. Okay class, now let's study about the appearance of early humans. Okay class, you may see there are the footprints of early humans. Okay, yes, you may see. And in some places tools, utensils and the footprints, teeth and the bones of early humans have been found.
इसका मतलब हो गया कि अब हम अर्ली ह्यूमंस की आकृति के बारे में जानेंगे, उनकी बनावट कैसी थी। तो कुछ जगहों पर हमको क्या मिला, बर्तन मिले, औजार हथियार मिले, पैरों के निशान मिले, दांत मिले, हड्डियां मिली, जिनसे हमको समझने में आसानी होती थी कि हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन अवर पास्ट। इसके अलावा दीज टेल अस दैट द अर्ली ह्यूमंस हैड स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड द फीट। उनके अपीयरेंस के बारे में ये भी है कि वो अर्ली ह्यूमंस क्या क्या थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग आर्म होते थे, उनके फीट्स बड़े लॉन्ग्स होते थे, ठीक है। सो दे हैड लॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीट बिकॉज दे वर एबल टू मूव फास्ट एंड क्लाइम टू ट्रीज, ठीक है। वो जल्दी से मुड़ भी जाते थे, पेड़ पर भी चढ़ जाते थे। दे कुड ऑल्सो वॉक अपराइट, इसके अलावा पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाते थे। दे हैड स्ट्रॉन्ग जॉज एंड टीथ विच टेल अस दैट दे वर एबल टू ईट रॉ फूड्स लाइक द फ्लेश ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा भी देख लो उनके जॉज में होते जबड़े, टीथ में से दांत, उनके जबड़े जो दांत होते थे बड़े मजबूत होते थे। वो इसलिए होते थे, उनकी बनावट, उनकी अपीयरेंस इसीलिए होती थी ताकि उस वक्त वो जो खाते थे, जो रॉ मटेरियल होते थे, वो रॉ चीज़, वो कच्चा खाना खाते थे, ठीक है। और उनको चबाने में आसानी होती थी। रॉ फूड्स में जैसे फ्लैश ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के कच्चा मांस, वो ये सारी चीज़ें खाते थे। और वहाँ पर जो मेंस थे, मेन वो क्या करते थे, दे हंटेड एनिमल्स, ठीक है, वो जानवरों को मारते थे। और वुमेन्स गेदर फ्रूट्स, नट्स, रूट्स एंड द बेरीज फॉर फूड। और औरतें जो थी, महिलाएं जो थीं, वो क्या करती थी, नट्स, रूट, इन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करती थी खाने के लिए, ठीक है क्लास। एंड दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घुमा करते थे, वो एक जगह नहीं रहते थे। ओके, नेक्स्ट वी विल टेल अबाउट द शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है उस वक्त के लोगों का घर, कहाँ वो रहते थे। इस पॉइंट्स में हम यही पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए भीमबेटका केव का ये एंट्रेंस, यहाँ पर वो जाने की जगह है, ठीक है। फिगर नंबर 2 में आप देखिए। ओके, अब शेल्टर में हम पढ़ते हैं कि जब वो जाते जाते थक जाते थे तो वो एक जगह वो रेस्ट करते थे, ठीक है। जैसे रात में अर्ली ह्यूमन्स रेस्टेड वॉट एवर दे स्टॉप्ड फॉर द नाइट, रात में थक कर आराम करते थे। दे मे हैव टेकन शेल्टर ऑन अ ब्रांचेस, कहाँ कहाँ आराम करते थे पता है आपको, वो आराम करते थे पेड़ों की टहनियों पर, ठीक है, और इन केव्स और गुफाओं में। और किस लिए करते थे, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड एनिमल्स, क्योंकि उस वक्त बहुत अपने आप को बचाते थे वो गर्मी से, सर्दी से और जानवरों से। अपने आप को बचाने के लिए इन जगहों पर वो आराम करते थे, रुकते थे। सम लिव्ड इन अ ह्यूज पिट्स का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो वो क्या करते थे, कभी कभी वो बड़े से गड्ढे में, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के वहाँ रहते थे। विच दे कवर्ड विद ब्रांचेस, और इन गड्ढों को ऊपर से जानवरों को पता न चलने पाए कि इस गड्ढे में कोई रह रहा है, इस तरह से वो अपने आप को इन गड्ढों में रखते थे और ऊपर से ब्रांचेस को, टहनियों से, पत्तियों से उसको ढक देते थे। सम यूज्ड एनिमल्स स्किन्स ओवर लार्ज ब्रांच टू मेक टेंट टू लिव इन, और बहुत सारे लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम मॉडर्न टाइम में टेंट यूज़ करते हैं रहने के लिए, उसी तरह उस वक्त भी लोग टेंट का इस्तेमाल करते थे। कैसे इस्तेमाल करते थे, एनिमल्स स्किन, जानवरों के खालों को वो बड़ी बड़ी टहनियों में बनाते थे, टेंट में भी रहते थे वो लोग। इसके अलावा अब हम आते हैं, हमने पढ़ा अपीयरेंस, उनके आकार प्रकार, शेल्टर, उनका रहना। अब हम पढ़ते हैं उनके क्लोथ्स, यानी वो कपड़े क्या पहनते थे। सही बात है, सोचना पड़ेगा कि हम तो कपड़े पहनते हैं, पहले के लोग भी क्या कपड़े पहनते थे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दे यूज्ड एनिमल्स स्किन्स, क्या पहनते थे वो, पहनने के लिए जानवरों की स्किन, खाल, ठीक है, उनको इस्तेमाल करते थे। और स्टिच्ड लार्ज लीव्स टू कवर हीट, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट। इसके अलावा वो बड़ी बड़ी पत्तियों, कुछ बड़ी पत्तियों का नाम आप जानते हैं, जैसे आपका केला लीव्स हो गया ना, बनाना लीव्स, बनाना की पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आप समझ लीजिए इसी तरह की पत्तियों को स्टिच्ड, वो कैसे स्टिच्ड करते थे,
वो किसी तरह के थॉर्न होते थे, उन्हीं कांटों को आपस में फंसा लेते थे और इस तरह से वो कपड़ों का रूप बना लेते थे और वो अपने आप को कवर करते थे उन्हीं चीज़ों से। और उनको ठंडी, गर्मी, सर्दी, धूल और इंसेक्ट बाइट्स यानी मच्छरों जिस तरह के होते, इस तरह के बहुत सारे इंसेक्ट्स होते थे, उनसे बचाव के लिए वो कपड़े पहनते थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टूल्स। देखिए फिगर नंबर 3 में और फिगर नंबर 4 में देखिए देयर आर सम टूल्स। ओके क्लास, चलिए अब हम उनके अर्ली ह्यूमंस के टूल्स के बारे में जानते हैं। ये अर्ली ह्यूमन रियलाइज टू सर्वाइव, अर्ली ह्यूमन ने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड किया, समझा कि हमको सर्वाइव करना, अगर जीवित रहना है इस एटमॉस्फेयर में, इस इन्वायरमेंट में, दे नीड टू फीड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो उन्हें खाने की ज़रूरत है, उन्हें अपने आप को बचाने की, अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। दे बिगिन टू यूज़ टू स्टोन अवेलेबल अराउंड टू किल एनिमल्स फॉर फूड। तो क्या किया उन्होंने सबसे पहले कि उनके आसपास जो भी स्टोन्स थे, ठीक है, उनको क्या किया, उन्होंने उस स्टोन को लिया। किस लिए लिया? कि एनिमल्स को मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि वो इस एनिमल्स को वो खाते थे एज अ फूड। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे टूल्स को यूज़ किया था फॉर द डिफेंस। किस डिफेंस के लिए? नहीं, अपनी बचाव के लिए। ओके क्लास, अब हम थोड़े से और टूल्स के बारे में जानते हैं। दे यूज शार्प एज स्टोन फॉर हंटिंग टू प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, है ना। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था? कुछ नुकीले पत्थर लिया था और उससे अपने आप को, जानवरों को मार के शिकार करते थे और अपने आप को बचाते भी थे, कोई जानवर उनको खाने न पाए, नुकसान न पहुँचाने पाए। ग्रेजुअली लर्न शार्प सिंपल स्टोन एंड पेबल्स टू मेक एक्स। ठीक है, आपने देखा फिगर नंबर 3 में देयर आर हैंड एक्स, यानी ये एक तरह का एक्स, एक तरह का टूल्स है। ठीक है, उन्होंने एक सिंपल स्टोन लिया था, पेबल से इस हैंड एक्स को बनाया था एंड यूज देम टू किल एनिमल्स। किस लिए बनाया था? क्योंकि उनको जानवरों को मारना था और ज़मीन एंड डिग द सॉइल, ज़मीन को खोदना भी था। ठीक है, जैसे हमने इधर देखा कि कुछ लोग पिट्स बनाते थे ना, तो पिट्स बनाने के लिए वो लोग इसी तरह के एक्स, हैंड एक्स का यूज़ करते थे। दे आल्सो मेड स्पेयर्स एंड द एरो फॉर हंटिंग एंड फिशिंग। आपने देखा फिगर नंबर 4 में देयर आर सम स्पेयर्स, यहाँ पर तीर हैं कुछ, उन्होंने इसी तरह के कुछ भाले, कुछ तीरों भालों का किया था, हाथ से बनाया था कुछ टूल्स। ठीक है, और भालुओं का इसलिए बनाया था ताकि वो अगर दूर से ही किसी जानवर का शिकार करना चाहे तो फेंक करके उनका इस्तेमाल कर सकते थे। और इसके अलावा उन्होंने मछली पकड़ने के लिए भी कुछ हंट्स, कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया था। दे वर स्किल इन मेकिंग टूल्स, धीरे धीरे क्या हो गए थे, वो इन टूल्स को, इन औजारों को बनाने में बहुत माहिर हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने और भी क्या बनाया था, उन्होंने बोन्स से, जो जानवर मर जाते, जो एनिमल्स मर जाते थे, ठीक है, जिनको ये मारते थे, वो हड्डियाँ क्या होती थी, उनसे क्या बनाते थे? स्टेच्यू बनाते थे। ऑर्नामेंट्स जो हम लेडीज़ पहनती हैं, ऑर्नामेंट्स जो कान में, गले में, हाथ में, वो ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे बना करके, वो इन्हीं बोन से, जानवरों के हड्डियों से बनाते थे। एंटलस एंड द हॉर्न ऑफ एनिमल्स, और भी किस चीज़ से बनाते थे? एनिमल्स के हॉर्न, हॉर्न माने सींग्स होते हैं। ठीक है क्लास, ओके ओके, अब हम पढ़ते हैं, अब हम जानेंगे डिड यू नो, आपने क्या क्या जाना। देखिए यहाँ पर क्या है, अर्ली ह्यूमंस विद अ हैमर स्टोन। What do you know hammer stone? I'll tell you. Okay, the hammer stone, one of the earliest and the oldest stone tools, and it was made by humans. मतलब यह हो गया कि हैमर स्टोन टूल्स में से हैमर स्टोन क्या है? सबसे पुराना स्टोन है और इसको हमारे आदि मानव ने बनाया था। इट वॉज हार्ड, ये बहुत सख्त था, राउंडेड स्टोन था। दैट वॉज यूज टू स्ट्राइक अदर स्टोन टू शेप, मतलब ये कि ये इस स्टोन को इसलिए बनाया गया था ताकि इस स्टोन से दूसरे स्टोन को शेप दिया जा सके, आकार दिया जा सके, और उसको शार्प्ड एज, यानी शेप्ड, उसको नोकीला बनाया जा सके। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर प्रोसेसिंग फूड एंड ब्रेकिंग अप बोन्स, इसलिए भी बनाया गया था ताकि क्या किया जा सके? यस, हड्डियों को तोड़ा जा सके। ओके, ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस सेशन वेरी वेल।
और इसको आप सारा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके क्लास, चैप्टर से आप पूरा यहाँ से आप अर्ली ह्यूमन से लेकर के पूरा आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आप उसमें जो कोई प्रॉब्लम होगी आप उसको हमसे पूछिएगा और उसके बाद आपको हम बताएंगे। इसके बाद आपको कुछ होमवर्क नोट करा रहे हैं। ठीक है क्लास? ओके, थैंक यू।